So let us begin with wave optics numericals in this video. So first question we have is white light consists of wavelength from 400 to 700 nanometer. So this is given to us that wavelength of white light is 400 to 700 nanometer. So here there are two wavelengths given. So whenever there are two wavelengths given, you will be asked with, you have to find the two wavelengths also. So the question is asking what will be the wavelength range seen when white light is passed through glass of refractive index 1.55. So when I have a glass of refractive index 1.55 and there are two wavelengths given, these both wavelengths are in air, 400 nanometer, 700 nanometer, both are of air. I need to find the wavelength in wavelength of light in glass. Now if I take air and glass, so I will take here glass is a medium and air is a rarer medium, glass is a denser medium. So obviously glass is a denser medium, so I'll treat it as a medium with respect to air. So we have learned about the formula refractive index versus wavelength of light. So we know that refractive index whenever there are wavelengths given, so refractive index n equal to wavelength of light in air divided by wavelength of light in medium. This is our formula. Refractive index n equal to wavelength of light in air divided by wavelength of light in medium. As far as air is concerned, I have been given two values and I need to find the two values of medium also. So first I will have to write wavelength of air. The first value I will consider 400 nanometer. So I will write from here, from this formula, first I will rearrange. Wavelength of medium will be equal to wavelength in air divided by n. ठीक है, मुझे wavelength in medium पता करना है, ग्लास में कितना wavelength है वो पता करना है. तो wavelength of medium will be equal to wavelength of air divided by n. So दो केसेस करेंगे. तो फर्स्ट पहले टाइम पे 400 नैनोमीटर लेंगे, सेकेंड टाइम 700 नैनोमीटर. सो दो वैल्यूज मिलेंगे हमें. ठीक है, सो वेवलेंथ इन मीडियम विल बी इक्वल टू वेवलेंथ इन एयर. पहले हम लेंगे 400 नैनोमीटर. सो 400 into 10 raised to minus 9 divided by refractive index 1.55. So when you solve this, you get the answer as 258.06 into 10 raised to minus 9 meter. ठीक है, we have to write it in meter. Don't write in nanometer. You have to write it in meter. ठीक है, 258.1 is nearly 258.06. That is okay. And the second case, when I take second value, the wavelength of medium will be equal to second medium. हमको second वाला wavelength कौन सा है? 700. तो 700 into 10 raised to minus 9 divided by second value is 1.55. So when you solve this, you get 451.61 into 10 raised to minus 9 meter. Always remember, SI unit should be used while writing the final formula, final answer. Next question 14. The optical path of ray of light of a given wavelength is traveling a distance of 3 centimeters. So first distance is given to me. I will write x1 equal to 3 centimeter. In a flint glass having a refractive index of 1.6, the first refractive index is 1.6 is the same as that on traveling a distance of x centimeter. The second distance is given to me, x2 equal to x centimeter, through a medium having refractive index 1.25. The second refractive index is given 1.25. So we know that, students, x, that is distance, is inversely proportional to the refractive index. Distance is inversely proportional to the refractive index. So I will write from here x1 upon x2 equal to n2 upon n1. This will be my formula when I write it in inverse relation. So I will substitute the value 3 divided by x2 के जगह पे x आएगा, that will be equal to n2 के जगह पे आएगा 1.25 divided by n1 के जगह पे आएगा 1.6. So from here when you rearrange, you will write x equal to 1.6 into 3 divided by 1.25, 1.6 into 3 4.8 divided by 1.25. So you can take log or you can take reciprocal and just solve this value. You will get 3.84 centimeter. Again, as I told you, have to write it in meter. So x will be equal to 3.84 into 10 raised to minus 2 में आ जाएगा. ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे. Next question, a double slit arrangement produces an interference for wavelength is given. Wavelength of light is given to us. Wavelength of light in air is given to us as 589 into 10 raised to minus 9 लिखेंगे. Again, this is a nanometer. So nanometer को convert करेंगे मीटर में. That are 0.20 degree apart. So fringes को degrees में भी लिख सकते हैं. They are proportional to each other. So x in air is given to us 0.20 degree. What is the angular fringe? Second वाला fringe पता करना है. So I will write this as medium. अच्छा, second medium कौन सा बोला है? Water बोला है, तो इसको मैं x water लिख देता हूँ यहाँ पे. So second water का पता करना है जिसका refractive index दिया है 1.33. ठीक है, अभी एक चीज हमें नहीं दिया है कि वेवलेंथ इन एयर तो दिया है बट वेवलेंथ इन वाटर नहीं दिया, तो पहले हमें वेवलेंथ इन वाटर निकालना पड़ेगा. वेवलेंथ इन वाटर कैसे निकालेंगे? जो हमने फर्स्ट सम किया था अभी स्टार्ट करते समय, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम. यहाँ पे वाटर हमारा मीडियम हो जाएगा,
तो वेवलेंथ इन मीडियम, दैट इज आई विल राइट वेवलेंथ इन वाटर विल बी इक्वल टू वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय n, ठीक है। सो वेवलेंथ इन वाटर कितना हो जाएगा, वेवलेंथ इन वाटर हो जाएगा वेवलेंथ इन एयर दैट इज 589 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1.33। आई एम नॉट सॉल्विंग दिस वैल्यू, इसको ऐसे ही रहने दो, हम इसको यही वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर देंगे आगे जहां पे भी यूज करना है, ये सेम एज इट इज उठा के सॉल्व कर देंगे, ठीक है। नो नीड टू अगेन एंड अगेन सॉल्व, एक ही साथ फाइनल में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अभी सेकंड मुझे क्या पता करना है, एक्स ऑफ वाटर पता करना है, फ्रिंजेस इन वाटर। सो आई नो दैट एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, फ्रिंजेस इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। सो आई विल राइट एक्स इन एयर अपॉन एक्स इन वाटर will be equal to wavelength in air upon wavelength in water. Now put the value, x in air का वैल्यू दिया है 0.20 डिवाइडेड बाय x in water नहीं दिया है, so ऐसे ही रहने दो, डिवाइड बाय wavelength in air दिया है, wavelength in air कितना दिया है 589 into 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय wavelength in water, ये वैल्यू आएगा 589 into 10⁻⁹ डिवाइड बाय 1.33, ठीक है। देखा मैंने पहले बोला था यहाँ पे ये वैल्यू एज इट इज रहने दो, सो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि कट हो जाएगा दोनों वैल्यू। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते ऑलरेडी वी वुड वेस्ट आवर टाइम सॉल्विंग ओवर हियर दिस वैल्यू, फिर वो वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, ठीक है। सो इंस्टेड दैट इज बेटर ऑप्शन कि अगर ऐसा कुछ सम आता है कि जहाँ पे एक वैल्यू को दूसरे में पुट करना है तो लास्ट में ही सॉल्व करो, ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगा तो सॉल्व करेंगे, अगर मान लो यहाँ पे वैल्यू कुछ और रहता तो वी वुड हैव सॉल्व डेफिनेटली, बट हियर वी कैन सी द वैल्यूज आर कैंसिलिंग आउट ईच अदर, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल की ऑलवेज सब्स्टिट्यूट एट द एंड, ठीक है। सो 1.33 ऊपर चला जाएगा। सो x फॉर वाटर विल बी इक्वल टू 0.20 डिवाइड बाय 1.33। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.15 इज अवर आंसर, ठीक है, 0.15 दैट विल बी अवर आंसर। नेक्स्ट, in a double slit arrangement pattern, the slits are separated by a distance equal to 100 times the wavelength of light passing through the slit. What is the angular separation in radians between the central maxima and the adjacent maxima? ठीक है, in a double slit arrangement pattern, now this is a double slit arrangement pattern which is related to diffraction, ठीक है। So और diffraction में हमारे पास फॉर्मूला जो होता है स्लिट का जो सेपरेशन होता है, स्लिट सेपरेशन, उसको हम a से लिखते हैं। So यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि a is equal to 100 times of wavelength, a is equal to 100 times of wavelength, 100 times बोला ना, 100 times of wavelength। So I'll write a equal to 100 times of lambda। एंड फर्स्ट केस पूछ रहा है व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन इन रेडियंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमम एंड एडजेसेंट मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम एंड एडजेसेंट मैक्सिमम के बीच में एंगुलर सेपरेशन का मतलब होता है थीटा पता करना है। सो आई नो दैट a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। अगर एडजेसेंट मैक्सिमम बोला है तो n का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमम के बाद क्या आता है, सेंट्रल मैक्सिमम को एडजेसेंट क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा ना, सेंटर वाला तो पीक होता है, पीक के बाद जो फर्स्ट पीक आएगा उसको तो हम n इक्वल टू 1 देंगे। सो n का वैल्यू 1, एंड यहाँ पे हम साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा ले लेंगे बिकॉज एंगल बहुत छोटा आने वाला है, तो विल अप्रोक्सीमेटली टेक साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a थीटा इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला a थीटा हो जाएगा लैम्डा, n की जगह पे 1 डाल दिया और साइन थीटा की जगह पे थीटा डाल दिया, तो a थीटा इक्वल टू लैम्डा। तो a का वैल्यू दिया है मुझे, a का वैल्यू कितना दिया 100 लैम्डा, तो 100 लैम्डा इक्वल 100 लैम्डा इंटू थीटा इक्वल टू लैम्डा, थीटा थीटा कैंसिल, सो सॉरी लैम्डा लैम्डा कैंसिल, थीटा विल बी इक्वल टू 1/100, सो दैट इज 0.01 रेडियन, दैट इज अवर एंगल फर्स्ट केस। सेकेंड केस बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज मैक्सिमा ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन का डिस्टेंस दिया है कितना दूर है, कैपिटल डी का वैल्यू दिया है 50 सेंटीमीटर, तो 50 इंटू 10⁻⁻² मीटर फ्रॉम द स्लिट, कितना डिस्टेंस पे, सो एक्स पता करना है मुझे, कितने डिस्टेंस पे होगा ये। सो एक्स विल बी इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन a, डिफ्रैक्शन में a आता है, याद रखो, इंटरफेरेंस में छोटा d आता है डिनोमिनेटर में, डिफ्रैक्शन में छोटा e आता है, तो x विल बी इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा को ऐसे ही रहने दो, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय d का वैल्यू 50 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय a का वैल्यू कितना दिया है 100 लैम्डा। सो लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 51 जा 52 जा, तो मिलेगा 1/2, तो 1/2 कितना होता है 0.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर, दैट इज अवर आंसर। 0.5 मीटर में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अनपोलराइज्ड लाइट विद इंटेंसिटी I0 इज इंसिडेंट ऑन 2 पोलराइड्स, ठीक है। अगर ये 2 पोलराइड है यहाँ पे तो एक फिगर ले लेते हैं, पहले 2 पोलराइड बना लेंगे यहाँ पे। फिगर इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बट फिगर विल मेक यू आंसर वेरी मच इजियर, ठीक है।
सो दो पोलराइड है, इंटेंसिटी इंसिडेंट जो है वो है आई नॉट। तो हमने मैलस लॉ में पढ़ रखा है पहले से। मैलस लॉ क्या बताता है, जब भी फर्स्ट पोलराइड से इंटेंसिटी पास होगा तो उसका जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा वो हमेशा हाफ हो जाएगा। जो भी फर्स्ट इंटेंसिटी रहेगा उसका हाफ। फर्स्ट पोलराइड से इंटेंसिटी हमेशा हाफ ही होता है कंपलसरी, ये हमेशा याद रखो। फर्स्ट पोलराइड से जितना भी इंटेंसिटी पास होगा उसका हमेशा हाफ कर देना है। तो फर्स्ट से कितना पास हो रहा है, आई नॉट, तो यहां से बाहर कितना आएगा, आई नॉट बाई 2 बाहर आएगा। ये आई नॉट बाई 2 सेकेंड वाले पे जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाले में आई नॉट है, फर्स्ट पोलराइड, ये हमारा फर्स्ट पोलराइड है, राइट हियर पोलराइड 1 एंड दिस इज अवर पोलराइड 2। पोलराइड 2 को एनालाइजर भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। तो पोलराइड 1 से हमारा जो इंटेंसिटी है वो आई नॉट पास होगा तो कितना मिलेगा, आई नॉट बाई 2। आई नॉट बाई 2 अब सेकेंड वाले पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसका इंटेंसिटी कितना होगा, उसका इंटेंसिटी हमें मिलता है मैलस लॉ से। सो यूजिंग मैलस लॉ, Malus law, we know that the intensity coming out from first polaroid is always half of the incident intensity, और इसको हम I1 से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे I1 इक्वल टू आई नॉट बाई 2। ये हमारा I1 होता है, जो बाहर आया ना पहले वाले से उसको हम लोग नाम देंगे I1, और जो सेकंड वाले से बाहर आएगा उसको हम नाम देंगे I2। और मुझे I2 ही पता करना है। क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे I2 पता करना है। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर टच पास थ्रू सेकंड पोलराइड। सेकंड पोलराइड से पास होने के बाद कितना उसका इंटेंसिटी हो जाता है, ठीक है, वो हमें पता करना है। सो फर्स्ट पोलराइड से मुझे पता है हाफ हो जाएगा, सेकेंड वाले से मुझे पता करना है कितना इंटेंसिटी होगा, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पे एक्सिस देखो क्या होगा, एक्सिस कैसा होगा, एक्सिस के बारे में क्या बोल रहा है यहाँ से देखो। द एक्सिस ऑफ द फर्स्ट पोलराइड मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद वर्टिकल। तो अगर मैं इसको वर्टिकल ले लूं, ये जो मेरा स्टार्टिंग वर्टिकल लाइन है फर्स्ट पोलराइड का, इसके साथ 50 डिग्री बनाना है पोलराइड का एंगल। पोलराइड के जो लाइन है ना, मतलब पोलराइड की जो एक्सिस है, ऐसे ये जो एक्सिस होती है ना पोलराइड की एक्सिस, दिस एक्सिस, ये एक्सिस वर्टिकल के साथ 50 डिग्री बनाना है। मतलब ये जो एंगल दिख रहा है तो वो इन दोनों के बीच में जो एंगल दिख रहा है ये कितना डिग्री है, ये है 50 डिग्री। वर्टिकल एंड एक्सिस डॉटेड लाइन के बीच में हर जगह पे, यहाँ पे भी, देन यहाँ पे भी, नीचे आओ यहाँ पे भी, ये जो एंगल दिख रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो डॉटेड लाइन एंड वर्टिकल लाइन के बीच में जो एंगल है वो हमेशा 50 डिग्री होगा। फर्स्ट पोलराइड के बारे में, फर्स्ट पोलराइड में एंगल दे रहा है 50 डिग्री। सेकंड वाले का क्या बोल रहा है, एंड द एक्सिस ऑफ द सेकंड पोलराइड इज हॉरिजॉन्टल। द एक्सिस ऑफ द सेकंड पोलराइड इज हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसा, ये इसको ही हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, मतलब ऐसा है पूरा, ठीक है। ये ऐसे ऐसे लाइंस है, इसमें ऐसा ऐसा पोलराइड की लाइंस है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। फर्स्ट पोलराइड का बोला है 50 डिग्री बना रहा है, सेकंड पोलराइड का बोल रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। व्हाट इज द इंटेंसिटी कमिंग आउट ऑफ सेकंड पोलराइड। तो अगेन यूजिंग मैलस लॉ, फ्रॉम मैलस लॉ, मैलस लॉ का फॉर्मूला है, मैलस लॉ का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, सेकंड वाले का फॉर्मूला होता है I1 इंटू कॉस स्क्वायर फाइव, ये हमने पढ़ रखा है। I2 इक्वल टू I1 इंटू कॉस स्क्वायर फाइव। तो I1 का वैल्यू तो मुझे मिल चुका, I1 का वैल्यू कितना मिला है, I नॉट बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर। फाइव का वैल्यू क्या होगा, फाइव का वैल्यू एंगल बिटवीन सेकेंड पोलराइड एंड फर्स्ट पोलराइड होता है, ठीक है। आई रिपीट वंस अगेन, इसको ध्यान से समझो। फाइव का जो वैल्यू है, फाइव जो पोलराइड का जो वैल्यू आएगा मुझे, I2 इक्वल टू I1 कॉस स्क्वायर फाइव, उसमें फाइव का वैल्यू सेकेंड पोलराइड एंड फर्स्ट पोलराइड के बीच में जितना एंगल बन रहा है वो लेना है, ठीक है। तो अगर मैं अभी फर्स्ट पोलराइड एंड सेकेंड पोलराइड दोनों को ओवरलैप करूं, सपोज फॉर एन एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक वन डिफरेंट कलर, सपोज अभी फर्स्ट वाला पोलराइड तो मुझे पता है 50 डिग्री ऐसा बना रहा है, अगर मैं सेकंड वाले को इसके ऊपर डाल दूं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड वाला पोलराइड उठा के फर्स्ट वाले पे रख रहा हूँ, तो जब दोनों ओवरलैप होगा तो ऐसा होगा, ऐसा ऐसा लाइंस बनेगा दोनों के बीच में, ऐसा ऐसा लाइंस बनेगा, ठीक है, दोनों के बीच में। तो या तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, ये ऐसा ऐसा लाइंस बनेगा, ये सेकंड वाले का है, और फर्स्ट वाले का कैसे जा रहा था, फर्स्ट वाले का ऐसे जा रहा था, डॉटेड लाइंस, ठीक है, फर्स्ट वाले का लाइंस ऐसे जा रहा है, बराबर है, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दो, अभी कितना एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में, ठीक है, 50 डिग्री अगर वो पहले बना रहा है वर्टिकल के साथ, और अगर ये हॉरिजॉन्टल है पूरा, ये पूरा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये पूरा कितना होता है 90 डिग्री। 90 में से 50 तो इसने फर्स्ट वाले के साथ ही बना लिया, तो 90 में से कितना बचा, 40 डिग्री बचा, तो दैट इज योर 40 डिग्री। यहाँ पे जो हमारा सेकंड पोलराइड एंड फर्स्ट पोलराइड के बीच में एंगल आएगा वो आएगा 40 डिग्री, ठीक है। आई जस्ट इरेज एंड रीड्रॉ, अगर नहीं समझाए तो एक बार यहाँ पे वापस देख लो, ये 40 कैसे आएगा, बिकॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। देखो ये फर्स्ट वाला केस है, ये वर्टिकल, ये उसका 50 डिग्री,
ठीक है। अभी मैंने सेकंड वाला इसके ऊपर लाके रखा, तो सपोज सेकंड वाले का एक्सिस ऐसे आएगा, ये सेकंड वाले का एक्सिस है, ये सेकंड वाले का एक्सिस है, ये फर्स्ट वाले का एक्सिस है। फर्स्ट वाला मुझे क्या बोल रहा है, इसके साथ 50 बना रहा है, और सेकंड वाला ये है, तो ये पूरा 90 है और 50 यहाँ चला गया, तो यहाँ पे बचा कितना, 40 बचा ना। वही तो हमें पता करना है, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में जितना एंगल होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर 40 डिग्री, दैट इज योर आंसर। ठीक है, I2 इक्वल टू I1 cos स्क्वायर 40 डिग्री विल बी अवर आंसर। ठीक है, हमेशा याद रखो पोलराइड सेकंड एंड पोलराइड फर्स्ट के बीच में कितना एंगल बन रहा है, वो हमारा फाई एंगल है। ठीक है, मैंने पहले भी रिपीट किया था, वापस बता रहा हूं, फाई एंगल जो होगा वो सेकंड पोलराइड एंड फर्स्ट पोलराइड के बीच का एंगल लेना है। तो सेकंड पोलराइड ने तो पहले से ही 50 बना लिया वर्टिकल के साथ। ठीक है, और तो सेकंड एंड फर्स्ट के बीच में कितना आ जाएगा, 40 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट, in a biprism experiment, the fringes are observed in a focal plane of eyepiece at a distance of 1.2 meter. Capital D का वैल्यू दिया है 1.2 meter from the slits. The distance between the central bright band and the 20th bright band is 0.4. मतलब 20 fringes का वैल्यू मुझे दिया है 0.4 सेंटीमीटर। तो x कितना हो जाएगा, 0.4 डिवाइडेड बाई 20, तो 0.4 इंटू 10⁻⁻² कर देंगे, मीटर में कर देंगे। तो ऐसे ही रहने दो, इसको बाद में देखते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मुझे 20 फ्रिंजेस के लिए 0.4 बोला है, पर मुझे 20 का कोई काम नहीं है, मुझे एक ही चाहिए, एक के लिए निकालना होता है हर बार। तो एक को निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाई 20 करेंगे। व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द बाइप्रिज्म, अब इसके लिए मैं डायग्राम बना देता हूँ, बिकॉज ये बिना डायग्राम के नहीं समझ में आएगा। तो हियर आई विल टेक अ स्लिट। ठीक है, सपोज ये स्लिट है, जिसका स्लिट विड्थ हम लोग a से नाम देते हैं। इसके सामने एक बाइप्रिज्म है, ऐसा बाइप्रिज्म के बाद एक कॉन्वेक्स लेंस रखा है। ठीक है, बाइप्रिज्म के बाद देयर इज अ कॉन्वेक्स लेंस एंड यहाँ पे एक स्क्रीन है, और स्क्रीन मतलब आईपीस, स्क्रीन मतलब आईपीस, टेलीस्कोप रखा हुआ है यहाँ पे देखने के लिए। ठीक है, स्क्रीन एंड आईपीस एक ही बात है। तो ये लेंस है, ये बाइप्रिज्म है, ये स्लिट है। ठीक है, तो स्लिट विड्थ a बोला है, बाइप्रिज्म बोला है, लेंस बोला है, स्क्रीन बोला है। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन, नहीं, the fringes are observed in the focal eyepiece at a distance of 1.2 centimeter 1.2 meter from the slit। मतलब स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस कितना है, 1.2 मीटर। स्लिट से लेके आईपीस तक का, आईपीस मतलब स्क्रीन। ठीक है, आईपीस और स्क्रीन एक ही बात है, जहां पे पैटर्न दिखे। स्लिट से लेके आईपीस तक का डिस्टेंस कितना है, 1.2 मीटर बोला है। फर्स्ट थिंग, ये फर्स्ट गिवन डेटा है। सेकंड गिवन डेटा तो फ्रिंजेस के बारे में बोला था उसने कि 20 फ्रिंजेस का 0.4 है, वो हमने ले लिया, x का वैल्यू आ गया मुझे। व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द बाइप्रिज्म, तो हमने दोनों बाइप्रिज्म और स्क्रीन के बीच में, आईपीस के बीच में कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। 90 सेंटीमीटर बोला है फ्रॉम द आईपीस, मतलब मुझे जो कॉन्वेक्स लेंस रखना है वो 90 सेंटीमीटर रखना है आईपीस से, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ये 90 सेंटीमीटर होगा। तो सेंटीमीटर को तो रहने दो, क्योंकि इसको मीटर में करना है, क्योंकि ये डिस्टेंस मीटर में है ना, तो ये होगा 0.9 मीटर्स। ठीक है, 90 सेंटीमीटर मतलब 0.9 मीटर, 2 पॉइंट पीछे शिफ्ट होगा। ठीक है, वापस एक बार यहां से पढ़ते हैं। व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन अ बाइप्रिज्म एंड आईपीस, आईपीस मतलब स्क्रीन, बाइप्रिज्म एंड आईपीस के बीच में जब एक कॉन्वेक्स लेंस रखा है तो वो 90 सेंटीमीटर रखा है आईपीस से। The distance between the two virtual magnified images is found to be 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अभी अगर ये लेंस है तो मैं इसको बोलूंगा इमेज डिस्टेंस है मेरा, ये इमेज डिस्टेंस होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, यहां से लेके यहां तक जो होगा वो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। अगर ये पूरा 1.2 है और ये 0.9 हो गया, तो ये जो बच गया है ये कितना होगा, 0.3 होगा ना, जो बच गया पूरा, तभी तो 1.2 कंप्लीट होगा। ठीक है, सो u का वैल्यू मुझे मिला 0.3 मीटर, v का वैल्यू मुझे मिला 0.9 मीटर। ठीक है, ये तो मुझे डायग्राम से ही मिल गया। टोटल 1.2 था, इमेज उसने बनाया 0.9 पे, तो जो बच गया 0.3 वो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। लेंस के पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, लेंस के बाद इमेज डिस्टेंस होता है। दिस वी हैव स्टडीड अप टिल 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, लेंस के पहले होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको u से डिनोट करते हैं, लेंस के बाद आता है इमेज डिस्टेंस, जिसको v से डिनोट करते हैं, और दोनों का वैल्यू ऐड होके हमें 1.2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे दिया ये जो लाइन यहाँ पे अभी आया, द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल मैग्निफाइड इमेजेस इज फाउंड टू बी 0.9 सेंटीमीटर। इमेजेस जो हमें स्क्रीन पे मिल रहा है ना, दो वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे मिलेगा लेंस की वजह से, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0.9 सेंटीमीटर है। तो उसको मैं D1 नाम देता हूँ, 0.9 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में करेंगे, 0.9 इंटू 10⁻⁻² मीटर। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट विच इज यूज्ड, हमें वेवलेंथ का वैल्यू पता करना। सो ये पूरा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था कि क्या ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो एट द एंड वी आर ओनली सपोज टू फाइंड द वेवलेंथ। वेवलेंथ निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है x इक्वल टू n लैम्डा d अपॉन d। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, x इक्वल टू n लैम्डा d अपॉन d। n मत लो यहाँ पे तो भी चलेगा, नो इशू, n नहीं लिया तो भी चलेगा।
वी कैन डू वन थिंग, इसको हम ऐसा लिखते हैं x इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी, बिकॉज मैंने n जो है वो x में ले लिया है पहले से, n मतलब हमारा फ्रिंजेस, तो फ्रिंजेस मैंने 20 फ्रिंजेस वो ऑलरेडी ले लिया है x में, तो हम वापस n नहीं लेंगे, गलत हो जाएगा। तो लैम्डा बड़ा डी अपॉन छोटा डी, ये हम करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकालो, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, x छोटा डी अपॉन बड़ा डी, लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा x स्मॉल डी अपॉन बड़ा वाला डी। तो x का वैल्यू मुझे दे रखा है, ये मेरा x का वैल्यू है, बड़ा वाला d का वैल्यू भी मुझे दे रखा है, दो वैल्यू दे दिया है। तीसरे वैल्यू की गड़बड़ है, d छोटा वाला d की वैल्यू की गड़बड़ है। छोटा वाला d क्या होता है, ये वाला, सॉरी ये नहीं होता, ये d होता है। छोटा वाला वैल्यू जो स्लिट का वैल्यू डिस्टेंस होता है वो d होता है, ठीक है। मुझे d नहीं दिया, d के जगह पे ये सब दे के रखा है, ये कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू है, इससे मुझे d निकालना पड़ेगा। फॉर दैट वी हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला, तो आई विल एक्सपेक्ट यू टू डायरेक्टली मेमोराइज द फॉर्मूला, कि ज्यादा उसमें सोचो मत कहां से है कैसे है, डायरेक्ट मैं अभी एक फॉर्मूला दे रहा हूँ d निकालने के लिए, डायरेक्ट उसको रट लो, क्योंकि ये एक ही ऐसा सम है जहां पे तुम्हें ये यूज होगा, ठीक है, ऐसा कोई सम और कोई है नहीं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है d1 अपॉन d, ठीक है, विल बी इक्वल टू v अपॉन u, हमारा ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको ऐसे ही याद रख लो, कहां से क्या है छोड़ दो, उसके ऊपर ज्यादा मत पढ़ो, सम सॉल्व करने से मतलब है सम सॉल्व करो, ठीक है। एक छोटा सा ही तो फॉर्मूला है, उसको याद करने में कितना टाइम लगेगा। तो स्मॉल डी विल बी इक्वल टू d1 इंटू यू अपॉन वी, ये हमारा हो जाएगा, स्मॉल डी का वैल्यू हो जाएगा d1 इंटू यू अपॉन वी। अब वैल्यू डाल दो तो आ जाएगा, तो x, तो लैम्डा का वैल्यू निकालना था, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, x स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, तो x स्मॉल डी के जगह पे d1 इंटू यू अपॉन वी डिवाइडेड बाय बड़ा वाला d, ठीक है। अब वैल्यू डाल देंगे, तो इसका वैल्यू था 0.4 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई d1 का वैल्यू 0.9 सेंटीमीटर था, -2 मीटर में हो जाएगा। u का वैल्यू था 0.3, v का वैल्यू वापस 0.9 ही था, एंड डिवाइडेड बाई बड़ा वाला d था 1.2, ठीक है। तो यहाँ से तो पहले 0.9 कट हो जाता है, तो यहाँ पे बचता है 0.4 इंटू 10⁻, ये -2 और ये -2, ये हो जाएगा -4 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 1.2। तो इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। योर आंसर विल बी दिस 5000 एंगस्ट्रॉम है ना, हमें मीटर में आएगा, हमें आएगा 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। हम लोग मीटर में सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर वेवलेंथ का होगा 5 इंटू 10⁻⁷। सिर्फ ये एक पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इसको ऐसे ही याद कर लो, ठीक है, सो दैट हमारा स्मॉल डी का वैल्यू आ जाएगा। सो दिस इज ये एक 4 मार्क का न्यूमेरिकल है जो वी कैन एक्सपेक्ट सेक्शन डी में आने के लिए, ठीक है। Next, in front of a diffraction by a narrow slit, a screen is placed at a distance of 2 meter from a lens, ठीक है, स्क्रीन 2 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है, 2 मीटर, जो कैपिटल डी का वैल्यू है हमारे पास 2 मीटर का वैल्यू, टू ऑब्टेन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न इफ द स्लिट विड्थ मतलब ए का वैल्यू दिया है, दैट इज 0.2 mm को मीटर में करेंगे, तो 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर, एंड द फर्स्ट मिनिमम इज एट 5 mm ऑन ईदर साइड। ओके, नाउ हियर अगेन यू विल रिक्वायर डायग्राम टू अंडरस्टैंड। ये मेरा सेंट्रल मैक्सिमा, फिर मैक्सिमा मिनिमा आगे क्या आते रहेंगे, ठीक है। तो ये मेरा सेंट्रल मैक्सिमा है, ये मेरा फर्स्ट मैक्सिमा है, ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट मैक्सिमा, यहाँ पे ये वाला हमारा फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है। उससे आगे मुझे जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट ही बोला है क्वेश्चन में, फर्स्ट मैक्सिमम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, स्लिट विड्थ इज 0.2, चलो ये तो आ गया, स्लिट विड्थ 0.2 एंड द फर्स्ट मैक्सिमम इज 5 मिलीमीटर ऑन द ईदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है। एंड के बाद वाला क्या बोल रहा है, फर्स्ट मिनिमम, अच्छा सॉरी, फर्स्ट मिनिमम इज 5 mm ऑन ईदर साइड। अगर ये फर्स्ट मैक्सिमम है तो ये मेरा फर्स्ट मिनी है, ये फर्स्ट मिनी है, जो डिप्रेशन जैसा है, दिस इज माय फर्स्ट मिनिमम, ठीक है, ये फर्स्ट मिनी। ये बोल रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मिनिमम का डिस्टेंस 5 mm है, दोनों तरफ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों तरफ 5 mm, मतलब अगर दोनों तरफ 5 mm है तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 mm हो जाएगा। इधर भी 5 लेना है, इधर भी 5 लेना है, सेंटर वाले से फर्स्ट मिनिमा का इधर भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस 10 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे, और ये टोटल डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, हमने पढ़ रखा है, इसको हम लोग बोलते हैं विड्थ। तो मुझे ये विड्थ का वैल्यू दिया है, W का वैल्यू दिया है 10 mm, ठीक है। इनडायरेक्टली उसने विड्थ का वैल्यू दिया है 10 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो दिस यू हैव टू निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन से ये सब जानना पड़ेगा, ठीक है, ये प्रैक्टिस से आता है। द मोर यू प्रैक्टिस यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन टू यू। फाइंड द वेवलेंथ, लैम्डा का वैल्यू पता करना है। सो विड्थ का फॉर्मूला है, विड्थ का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स लैम्डा बड़ा डी अपॉन छोटा ए, दिस इज अवर फॉर्मूला, W इक्वल टू 2 लैम्डा डी अपॉन ए। तो डाल दो सबका वैल्यू, तो यहाँ से पहले लैम्डा निकालो, लैम्डा हो जाएगा WA अपॉन 2D, ठीक है। तो W का वैल्यू है 10 इंटू 10⁻³ इंटू A का वैल्यू है 0.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 इंटू बड़ा वाला D का वैल्यू है 2,
तो इसको सॉल्व करो, इसका आंसर आएगा 5 × 10⁻⁻⁷, ये आंसर आएगा 5 × 10⁻⁷ मीटर। The intensity of a light coming from one of the slits in Young's double slit experiment is twice the other. So let I will take the एक intensity I1, let I1 is the first intensity and I2 is another intensity. तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, the intensity of light coming from one of the slit, कोई भी एक slit, is twice the other, twice coming from the other. तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ I2 equal to 2 times of I1, ठीक है। I1 एक इंटेंसिटी होगा, यहाँ पे बोल रहा है कि सेकंड वाला इंटेंसिटी विल बी 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वन, ठीक है। उल्टा भी ले सकते हैं हम लोग, I1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I2 भी ले सकते हैं, कुछ भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि इसने स्पेसिफाइड नहीं किया है ना कि I1 को लेना है कि I2 को लेना है, तो यू टेक एनीथिंग, आंसर एक ही आएगा। What will be the approximate ratio of intensity of bright and dark fringes? जब हम ब्राइट की बात करेंगे तो इंटेंसिटी होता है मैक्सिमम, जब डार्क की बात करते हैं तो इंटेंसिटी होता है मिनिमम, ये याद रखना है। मतलब मुझे यहाँ पे Imax अपॉन Imean का वैल्यू पता करना है। Imax अपॉन Imean कितना होगा जब मुझे ये दे रखा है, तो देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला विच आई हैव गिवन यू। Imax अपॉन Imean का फॉर्मूला होता है √I1 प्लस √I2 डिवाइडेड बाय √I1 माइनस √I2 द होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। So Imax अपॉन Imean इक्वल टू √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 द होल स्क्वायर। अब वैल्यू डाल दो सब में, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, √I1 को तो ऐसे ही रहने दो, √I1 को कुछ मत करो क्योंकि I1 का कुछ दिया नहीं है। I2 के बारे में दिया है हमारे पास कि 2 टाइम्स ऑफ I1 है, तो यहाँ पे लिखो √2 टाइम्स ऑफ I1 डिवाइडेड बाई, इधर पे आएगा I1 माइनस √2 टाइम्स ऑफ I1, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट में स्क्वायर कर दो, एक ही ब्रैकेट आएगा, कॉमन ब्रैकेट में स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है। तो स्क्वायर तो बाद में करेंगे, पहले तो व्हाट डू यू सी, यहाँ पे मेरे पास √I1 कॉमन है दोनों टर्म्स में, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी। तो √I1 ऊपर से एक बार कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 1 प्लस √2, और नीचे से क्या कॉमन ले लेंगे, नीचे से भी √I1 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 माइनस √2, ठीक है। √I1 ऊपर से नीचे से दोनों से कॉमन ले लिया, और बाहर स्क्वायर रहेगा, जो बड़ा वाला स्क्वायर है बाहर का वो तो रहना ही है, वो कहीं नहीं जाएगा। तो √I1 कैंसिल, तो अब यहाँ पे मुझे मिला 1 प्लस √2 द होल स्क्वायर, 1 प्लस √2 का वैल्यू 1.414 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √2 1.414, इन दोनों का स्क्वायर कर देना, तो ये कितना मिलेगा, 1 प्लस 1.414 विल बी 2.414 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1.414 विल बी 0.414, इसका स्क्वायर इन दोनों को डिवाइड करो, लॉग ले लो, यहाँ पे यू विल हैव टू टेक लॉग कैलकुलेशंस, ठीक है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग यू डू इट ऑन योर ओन। इसका सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर इसका आएगा 33.9 समथिंग, 33.9 नियरली आंसर आता है, तो 34 लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट बोला है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो, 33.9 लिखा तो भी चलेगा, रॉन्ग नहीं मिलेगा। तो बट अप्रोक्सीमेट बोला है तो लिख लो 34, राउंड ऑफ कर सकते हो बिकॉज अप्रोक्सीमेट बोला है, ठीक है। नेक्स्ट, अ पैरेलल बीम ऑफ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर। यहाँ पे कुछ बुक्स में 550 दिया है, कुछ बुक्स में 546 दिया है, सो लेट अस टेक 550 ओनली, ठीक है। तो वेवलेंथ का वैल्यू दिया है, लैम्डा का वैल्यू दिया है 550 नैनोमीटर, तो अगेन इसको कन्वर्ट करो, 550 into 10⁻⁹ मीटर थ्रू स्लिट ऑफ विड्थ, स्लिट विड्थ दिया है 0.4 mm, so that is 0.4 into 10⁻³ meter. The intensity pattern of the transmitted light is seen on a screen which is 40 centimeter away. बड़ा वाला d का वैल्यू दिया है 40 centimeter, that is 40 into 10⁻² meter. What is the distance between the first two order minimum? What is the distance between the two first order minimum? मतलब width का वैल्यू पता करना, मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है डायग्राम के साथ। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम, दोनों मिनिमम के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, विड्थ बोलते हैं, सेम वही पता करना है। तो W का फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a, ये हमारा फॉर्मूला है। तो वैल्यू डाल दो सब में, तो W विल बी इक्वल टू 2 into 550 into 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय 40 into 10⁻² डिवाइडेड बाय 0.4 into 10⁻³ तो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा, W का वैल्यू आएगा 1.1 into 10⁻³ मीटर, ठीक है। यू कैन सॉल्व इट, लॉग से सॉल्व करना है, कंपल्सरीली यूज लॉग टू सॉल्व, ठीक है। व्हाट मस्ट बी द रेशियो ऑफ द स्लिट विड्थ टू द वेवलेंथ, रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ A टू द वेवलेंथ का रेशियो पता करना है फॉर अ सिंगल स्लिट टू हैव अ डिफ्रैक्शन मिनिमम। फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम n का वैल्यू 1 बोला है एट 45 डिग्री, थीटा का वैल्यू बोला है 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 को हम यहाँ पे π/4 लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला है a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। सो यहाँ पे मुझे
a बाय लैम्डा, तो a बाय लैम्डा हो जाएगा n अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे n की जगह पे 1 लूंगा, यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे आई विल टेक अप्रोक्सीमेटली थीटा, हम साइन नहीं लिखते डिफ्रैक्शन में, मैंने बहुत बार पहले भी बताया, हम साइन को नेग्लेक्ट करके चलते, ठीक है। साइन थीटा की जगह अप्रोक्सीमेटली थीटा ले लेते, तो 1 डिवाइडेड बाय थीटा की जगह पे आएगा पाई बाय 4, पाई बाय 4 में से 4 ऊपर, नीचे आएगा पाई, तो a बाय लैम्डा हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3.14, पाई का वैल्यू 3.14, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.27 विल बी योर आंसर। Monochromatic electromagnetic radiation from a distant source passes through a slit. The diffraction pattern is observed at a distance of 2.50 meter from the slit if the width of the central maxima, width यहाँ पे दे रखा है W, 6 into 10 raised to minus 3 मीटर। What is the slit width? A का वैल्यू पता करना है। 3 केसेस दिया है, फर्स्ट केस में ये वेवलेंथ है, सेकंड केस में ये वेवलेंथ है, थर्ड केस में ये वेवलेंथ। तो एक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों में सिर्फ वेवलेंथ ही चेंज हो रहा है। फर्स्ट का वेवलेंथ दिया है 500 इंटू 10 रेज टू माइनस 9 लिखेंगे मीटर में। सेकंड का वेवलेंथ दिया है 50 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 का पावर माइनस 6 होता है, और थर्ड का वेवलेंथ दिया है 0.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 9 मीटर कर। फॉर्मूला एक ही है हमारे पास, W इक्वल टू 2 लैम्डा बड़ा वाला D अपॉन छोटा a, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ से हमें a निकालना है, तो a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 लैम्डा D अपॉन W। सब में यही फॉर्मूला लगेगा, इसमें भी a इक्वल टू 2 लैम्डा D अपॉन W, इसमें भी a इक्वल टू 2 लैम्डा D अपॉन W, इसमें भी a इक्वल टू 2 लैम्डा D अपॉन W। D एंड W यही लेने हैं, सब में D एंड W कॉमन है, सब में चेंज क्या होगा, 2 लैम्डा चेंज होगा, 2 भी कॉमन है, 2D एंड W सब में सेम है, एक ही वैल्यू चेंज होने वाला है, लैम्डा का वैल्यू चेंज होना है। आई गेस इसमें कुछ सॉल्विंग करने जैसा है नहीं, दिस इवन यू कैन डू, अगेन यूज लॉग बुक, एंड ये तुम्हारे आंसर्स आएंगे, ठीक है। सबको मीटर में कर देंगे तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सो आई एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, आई हैव टोल्ड यू द सॉल्यूशन। A star is emitting light at a wavelength of 5000 angstrom, लैम्डा का वैल्यू दिया है 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 कर देंगे, ठीक है। 5000 एंगस्ट्रॉम को मैंने कन्वर्ट किया है मीटर में। डिटरमाइन द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, थीटा का वैल्यू पता करना है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का वैल्यू पता करना है। हैविंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायमीटर का वैल्यू दिया है, डायमीटर का वैल्यू दिया है 200 इंचेस, तो यहाँ पे यू शुड रिमेंबर 1 इंच का वैल्यू तो कन्वर्जन पता होना चाहिए, 1 इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर, और अगेन सेंटीमीटर भी हमारा CGS यूनिट है, तो 1 इंच इक्वल टू 2.54 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 2.54 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर हो जाएगा। मुझे यहाँ पे डायमीटर को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डायमीटर को जब हम कन्वर्ट करेंगे, सो वी शुड नो दैट D विल बी इक्वल टू 200 इंटू 2.54 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर, दिस विल बी माई वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा, D थीटा भी लिख सकते हो, D थीटा लिखो, थीटा लिखो, एक ही बात है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, इसका फॉर्मूला होता है 1.22 लैम्डा अपॉन D, ठीक है, 1.22 लैम्डा अपॉन D। सो D थीटा विल बी इक्वल टू 1.22 इंटू 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 2.54 इंटू 10 रेज टू माइनस 2। सो सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 1.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 रेडियन, ये हमारा आंसर है। So last sum for the chapter, the distance between two consecutive bright fringes in a biprism experiment having wavelength 6000 angstrom is 0.32। फर्स्ट वाला वेवलेंथ दिया है 6000, अगेन 6000 एंगस्ट्रॉम को आई एम कन्वर्टिंग इनटू मीटर, तो 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 मीटर। जिसका फ्रिंजेस के बारे में बोला है उसका बोला है 0.32 mm। एंड बाय हाउ मच विल द डिस्टेंस चेंज, बाय हाउ मच विल द डिस्टेंस चेंज, जब भी चेंज इन डिस्टेंस पता करना है, तो चेंज इन डिस्टेंस होता है फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, ठीक है। मैं मॉड में लिख देता हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा वैल्यू बड़ा होगा, x1 बड़ा है कि x2 बड़ा है, मुझे नहीं पता, वी विल सॉल्व इट बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, ठीक है। इसके लिए मॉड में ले लिया। चेंज इन डिस्टेंस पता करना है, जब सेकंड वाले का वेवलेंथ दिया है, सेकंड वाले का वेवलेंथ दिया है 4.8, इसको कर देंगे इंटू 10 रेज टू माइनस 7 मीटर। एक चीज देखो, सेकंड वाले का x नहीं दिया, तो पहले मुझे x निकालना पड़ेगा, x2 निकालेंगे, फिर x1 माइनस x2 करेंगे। x कैसे निकालेंगे, x इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, सो x1 अपॉन x2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो x2 का वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल जाएगा x1 इंटू लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2। सो x2 विल बी, x1 का वैल्यू 0.32, मैंने अभी मिलीमीटर को कन्वर्ट नहीं किया है, बताता हूँ बाद में, ठीक है। तो अभी डोंट कन्वर्ट, बाद में लास्ट में कर लेंगे। 0.32 इंटू लैम्डा 1 का वैल्यू है सॉरी x2 विल बी x1 इंटू लैम्डा 2, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक हियर, यहाँ पे ये आएगा लैम्डा 2 और लैम्डा 1 उल्टा हो जाएगा, ठीक है। so, यहाँ पे इट विल बी x2 विल बी इक्वल टू x1 इंटू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, ठीक है।
तो लैम्डा 2 का वैल्यू आएगा पहले 4.8 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय आएगा 6 इंटू -7, 10⁻⁷ कट होता है। तो x2 का वैल्यू जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना, तो x2 का वैल्यू आएगा 0.256, ये भी mm में ही आएगा, ये याद रखो मैंने mm में रखा है, ठीक है, x1 का वैल्यू mm में रखा है, तो ये भी मुझे mm में आएगा 0.256 mm। अब क्या निकालना है, चेंज, तो चेंज का वैल्यू क्या होगा, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, जो भी बड़े में से छोटा करेंगे। तो देखो x1 0.32 है और x2 0.25 है, तो छोटा है, x2 छोटा है तो बड़ा तो x1 ही है, तो हम करेंगे 0.32 माइनस 0.256, दोनों को माइनस करो तो मुझे आंसर आता है 0.064, ये आएगा mm में। अब लास्ट में mm को कन्वर्ट कर दो, 0.064 इंटू 10⁻³ मीटर, लास्ट में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। So these were all about wave optics numerical. Next video में we will see next new chapter.